Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing book 7 and this is your science book and the name of your book is Science Horizon Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, today we are going to start this book with the very first chapter of this book. And the name of the chapter is Nutrition in Plants. All living organisms, plants and animals require food. So जितने भी living organisms हैं उन्हें क्या चाहिए? Food चाहिए. क्यों? So that they can live. The organisms need to take food to maintain energy, to obtain materials for growth and to obtain materials for the repair of damaged parts of the body. So ये जितने भी organisms होते हैं चाहे वो living हो जिसमें plants, animals हो या हम हो हमें food क्यों चाहिए? To obtain energy ताकि हमें proper energy मिल पाए. To obtain materials for growth. Growth के लिए हमें कुछ materials चाहिए. And for that we need food to obtain materials for the repair of damaged parts of the body. So अगर हमारे body parts में कहीं चोट लग जाए, कोई भी body part damage हो जाए, and for repairing that part we need these food items. The process of taking food by an organism as well as the utilization of this food by the organism is called nutrition. So, वो process जिससे कोई organism food को अपने अंदर लेता है, उस food को utilize करता है, उसे ही कहते हैं nutrition. Plants can make their own food, but animals, including human beings, cannot. So plants हमने पढ़ा है कि plants अपना food बना सकते हैं, but जो animals होते हैं या जो human being है वो नहीं. They obtain food from plants and other animals. ये अपना food कहाँ से लाते हैं? Plant से या फिर दूसरे animals से that eat plants. Thus human beings and animals depend on plant for their food. इसलिए जो human beings है या जो animals हैं वो किस पे depend करते हैं? Plants पे depend करते हैं अपने food के लिए. Directly or indirectly, चाहे वो directly खा रहे हो उसे या फिर indirectly किसी और form में उसे खा रहे हो. We will now discuss the various modes of nutrition in organisms. We are now going to learn about the different modes of nutrition in the organisms. So here children you can see the nutrition in plants कैसे मिलता है? The roots take water and minerals from the soil and sun's energy is used here and you can see the oxygen and glucose is released and carbon dioxide is taken inside. Air क्या होता है? जो plants हैं फिर वो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फ्रूट्स ये सारी चीजें हमें रिलीज करते हैं अपने अंदर से. Now let's learn about the modes of nutrition. There are two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. Now let's learn about the first one, that is the autotrophic nutrition. The word autotrophic is derived from the Greek word autos means cell and tropy means nutrition. So autotrophic nutrition क्या है? एक ऐसा nutrition जो खुद से मिलता है. auto का मतलब होता है self, मतलब खुद से, and tropy means nutrition. So autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism prepares its own food from simple substances such organism is called autotrophs. So ऐसा organisms जो खुद से food को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं autotrophs. Autotrophic nutrition is found in plants.
सो प्लांट्स में इस टाइप का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा. Plants have a green colored pigment called chlorophyll. So plant में green color का pigment है जिसे हम chlorophyll कहते हैं, which helps them to prepare carbohydrates. जो help करते हैं उन्हें carbohydrate prepare करने में from water and carbon dioxide present in the presence of sunlight. So plants क्या करते हैं, water और carbon dioxide को लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये खुद का फूड बनाते हैं, विच इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो अभी हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज दिस. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम और डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे अदर थिंग्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए. सो ऐसे न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. हेटेरो मीन्स अदर. हेटेरो का मतलब यहाँ पे है अदर, दूसरा. द ऑर्गेनिजम्स विच फीड थ्रू हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. सो वो ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं किसी और पे किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम फैक्ट्स. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉप्स. सो जो भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ये अपना फूड खुद से नहीं बना पाते. दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. तो ये सारे क्या करते हैं, प्लांट्स या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं इनसे ही अपना फूड ये लेते हैं. सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ मैन ईटिंग सम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट, एंड हियर इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी अ काउ इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर इट्स फूड. नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं. दैट इज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खुद का फूड बनाते हैं. Plants do it through the process of photosynthesis. और plants इसे कैसे करते हैं, through photosynthesis. Now let's learn a new fact here. Chlorophyll gives plants their green color because it is specialized in absorbing other colors of light such as red, blue and not green. Chlorophyll क्या होता है, chlorophyll जो है plants को जो है green color देता है. आपने देखा होगा प्लांट्स जितने भी होते हैं वो ग्रीन कलर के, उनके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं. तो कौन देता है, ये क्लोरोफिल से मिलता है. क्यों, बिकॉज इट इज स्पेशलाइज इन अब्सॉर्बिंग अदर कलर्स. ये जो है अदर कलर्स को, दूसरे कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन ग्रीन को नहीं. एंड सो दिस ग्रीन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ग्रीन कलर. और इसलिए जो ग्रीन लाइट है वो ग्रीन कलर के रूप में हमें रिफ्लेक्ट होके मिलती है. रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस. अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना खुद बनाते हैं. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? लेट्स रीड. द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो वो रॉ मटेरियल्स जो हमें फोटोसिंथेसिस से मिलते हैं उनके नाम हैं sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Photosynthesis will not take place in the absence of any of these. So अगर इन सारे प्रोडक्ट्स में से अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा तो photosynthesis will not occur. Photosynthesis नहीं काम करेगा. Now let's learn about the first one, and that is sunlight. Sunlight is an essential requirement for the process of photosynthesis. सो सनलाइट जो है एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है किस चीज के लिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, अब्सॉर्ब्स सन एंड इनिशिएट्स फोटोसिंथेसिस. सो जो क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो हमारे लीव्स के अंदर होता है, वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और फिर फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करता है. Now the next topic is chlorophyll. Plants have green color
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर होता है, क्यों? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल absorbs solar energy which is converted into chemical energy through the process of photosynthesis. So chlorophyll क्या करता है? सोलर एनर्जी को अपने अंदर absorb कर लेता है और जिसे वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और ऐसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। You might have seen leaves of red, brown, yellow and patches of colors. तो आपने ऐसे leaves को देखा होगा। These colored leaves also do photosynthesis from the hidden chlorophyll in such leaves. So ये जो leaves हैं ये भी जो है photosynthesis करते हैं by the hidden chlorophyll in such leaves. इन leaves में कुछ hidden chlorophyll होता है जिसकी वजह से photosynthesis को carry on करते हैं. Now let's learn about carbon dioxide. The main raw material used by plants is the synthesis of carbohydrates means glucose. So जो मेन रॉ मटेरियल होता है प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो means glucose is carbon dioxide. Carbon dioxide present in the atmosphere is taken in by plants through the stomata in their leaves. So ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा, जो आप कह सकते हैं आप अपने नाक से सांस लेते हो, ऐसे जो प्लांट्स हैं स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। सो ये स्टोमेटा जो है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। thereafter on reacting with water in the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide gets converted into carbohydrates. So अब जो है रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट्स के अंदर, वाटर होता है और सनलाइट की जब सनलाइट पड़ता है क्लोरोफिल होता है, तो इन सब में ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। Now the next topic is water. Water is another raw material required for the synthesis of carbohydrates by plants. So water एक दूसरा raw material है जिससे जो है which is used by plants as carbohydrate for preparing the carbohydrates. Water is absorbed by roots from soil. Water जो है roots absorb कर लेती हैं soil में से. It is transported to the leaves through small pipe tubes or in plant. So plant में जो roots हैं, roots के through ये जो है different body parts में stem में जाती हैं और जो different छोटे छोटे pipes या फिर tubes होते हैं plant के, उसके through ये बाकी body parts में plant के पहुंच जाते हैं. Next is photosynthesis. The process of synthesis of food by green plants from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis. So photosynthesis क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड जो होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सारे मिल के एक फूड बनाते हैं अपने आप, एंड दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. Now you can see the equation is written as 6CO2 plus 6H2O and sunlight और chlorophyll के presence में ये क्या बन जाते हैं? C6H12O6 plus 6O2 means glucose and oxygen. So carbon dioxide कितना कंटेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड 6 पॉइंट है, वाटर 6 पॉइंट है, H2O is the unit of water and H2O is of 6 point. अब ये इन चीजों के साथ मिलके you can see it is divided into glucose and oxygen. Now let's learn about the site of photosynthesis. The first is the chlorophyll. The parts of the plant which contain chlorophyll are the sites of photosynthesis. So वो पार्ट जो प्लांट के जिसमें क्लोरोफिल होता है ये जो है फोटोसिंथेसिस के साइट्स है. Chlorophyll is chiefly present in leaves and in some quantity in young stem.
जो क्लोरोफिल होता है वो ज्यादातर तो लीव्स में होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में ये स्टेम्स में भी होता है। ये जो स्टेम है इसके अंदर भी होता है। सो दीज पार्ट्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इसीलिए ये जो पार्ट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये सारे पार्ट जो हैं फोटोसिंथेसिस के साइट्स हैं। लीव्स आर आल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। सो जो लीव्स होते हैं उन्हें फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट्स की। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। These chloroplasts are scattered throughout the leaf cells. So leaf cells के अंदर जो ये chloroplasts हर तरफ scattered होते हैं। ये you can see the picture of the leaf and what all things are here: inner membrane, outer membrane, stroma and thalcoid. These all are present inside. Chlorophyll is present inside the chloroplast of the plant leaf. Now, children, let's learn about stomata. Leaves have tiny pores called stomata on their surface. So, leaves हैं उनके surface पे छोटे-छोटे pores होते हैं जिसे हम stomata कहते हैं। Is stoma, अब stomata का singular जो form है वो है stoma. So, each stoma is guarded by 2 guard cells. So, हर एक स्टोमा को गार्ड करने के लिए 2 गार्ड सेल्स हैं। एंड स्टोमेटा allows carbon dioxide to enter the leaves and reach up to the chloroplast. स्टोमेटा क्या करता है? ये जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हेल्प करता है ताकि वो लीव्स के अंदर आ सके और क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच सके, so that it could be used in photosynthesis, ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज कर सके, प्लांट्स यूज कर सके फोटोसिंथेसिस के लिए। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आल्सो एस्केप थ्रू स्टोमेटा। सो जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है इस प्रोसेस में, उसे जो है स्टोमेटा कहते हैं। एस्केप्स थ्रू स्टोमेटा, वो स्टोमेटा से ही बाहर निकलता है। सो स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, वो रिएक्ट करता है विथ द क्लोरोप्लास्ट एंड आफ्टर दैट जो एंड प्रोडक्ट है जो निकलता है, दैट एंड प्रोडक्ट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलता है फिर स्टोमेटा से। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। सो फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? प्लांट्स के लिए फूड को प्रोड्यूस करता है। दीज प्लांट्स इन टर्न सर्व एज फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। ये जो प्लांट्स हैं जब ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं फिर ये फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड किसके काम आता है? अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए काम आता है, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन। तो ऐसे हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना। अब फोटोसिंथेसिस किस काम आता है? फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर में। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, किस लिए? ब्रीदिंग के लिए। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ब्रीदिंग के लिए फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। नाउ लेट्स लर्न व्हाट्स रिटन हियर इन द नोट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज द एंड प्रोडक्ट, निकलता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये हमें मिलता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फॉर स्टोरेज। और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज फूड इन द स्टेम पोटैटो। सो स्टार्च जो है डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है और एक एग्जाम्पल दिया गया है पोटैटो का जिसके स्टेम में स्टार्च स्टोर हो जाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट अ फैक्ट
And photosynthesis also takes place in plants having colored leaves like violet leaves. So photosynthesis जो है कुछ ऐसे प्लांट्स में भी होता है जिनके लीव्स कैसे होते हैं, कलरफुल लीव्स होते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि ग्रीन लीव्स होना जरूरी है, लेकिन जो कलरफुल लीव्स हैं जैसे कि वॉयलेट लीव्स, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है. Their color is due to the presence of other color pigment in excess. इनका कलर पर्पल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दूसरे कलर के जो पिगमेंट्स है वो ज्यादा हैं. बट क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देम. लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है. एंड इवन दो इट्स प्रेजेंस इज मार्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स. क्योंकि इनका क्लोरोफिल हमें दिखता नहीं है, ग्रीन कलर इसमें दिखता नहीं है, तो इसमें मतलब ये नहीं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है. ज्यादा कंटेंट ज्यादा है इसलिए इनका कलर ज्यादा शो होता है. Now let's learn the synthesis of plant food other than carbohydrates. So plant food carbohydrates के अलावा क्या क्या है? Let's learn about them. We have just learned that plant synthesis carbohydrates by photosynthesis. तो अभी हमने पढ़ा कि जो plants हैं carbohydrates को रिलीज करते हैं as the byproduct of photosynthesis. Carbohydrates are made of carbon and hydrogen. कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के बनता है. बट व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड फैट्स? लेकिन जो कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन और फैट्स, ये कहाँ से मिलता है हमें? फॉर प्रोटीन्स प्लांट्स नीड नाइट्रोजन. अब प्रोटीन अगर हमें चाहिए तो प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए. For the nitrogen present in the air cannot be used as such by plants. अब नाइट्रोजन तो बहुत अमाउंट में है पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट्स उसे ऐसे यूज नहीं कर सकते. नाइट्रोजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज. अब नाइट्रोजन को प्लांट्स कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट. अब जो है सॉइल जो होता है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है. वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजिंग नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म विच इज वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी अब्सॉर्ब बाय रूट्स अलोंग विद वाटर. सो ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विच इज वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में मिक्स हो सकता है, वाटर सॉल्युबल है, और ये अब्सॉर्ब किया जाता है रूट से अलोंग विथ वाटर. तो वाटर में वाटर के साथ ये जो है रूट्स के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम. सो हियर द नेम ऑफ अ प्लांट इज गिवन. राइजोबियम, अ बैक्टीरियम फाउंड इन द रूट ऑफ लेजियम प्लांट लाइक पीज, ग्राम एक्सेट्रा. सो ये जो एक राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो इन सारे प्लांट्स में पाया जाता है. कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. ये एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है. यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, जो एक नाइट्रोजन का यूजफुल फॉर्म. फार्मर्स एड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन. फार्मर्स क्या करते हैं? मैन्यूर को, खाद को और फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है. पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स टू द सॉइल. नाइट्रोजन तो होता ही है पर साथ में पोटेशियम भी होता है और दूसरे मिनरल्स भी होते हैं. एग्जाम्पल यूरिया. यूरिया इज in which all these are included. These substances dissolve in water. ये जितने भी सब्सटेंस है ये सारे वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं. एंड आर टेकन बाय रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये रूट्स जो है इसे ले लेते हैं और पानी के साथ अपने अंदर ले लेते हैं और पूरे जो प्लांट के जो बॉडीज हैं हर पार्ट में, प्लांट के हर पार्ट में ये उसे फैला देते हैं. फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिससे इन्हें प्रोटीन मिल जाता है. In this way, plants fulfill their requirement of nitrogen along with other constituents. So इसी तरीके से plants के पास नाइट्रोजन भी पहुंच जाता है जैसे बाकी चीजें पहुंचती हैं. Plants can now synthesize components of food other than carbohydrates.
तो प्लांट्स ऐसे कंपोनेंट्स भी ग्रो कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, सच एज प्रोटीन एंड फैट. प्रोटीन्स फैट्स आर ऑयल्स. सो फैट कहाँ होते हैं? ऑयल में होता है. सो जो भी ऑयल वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं जैसे उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा फैट होता है. Here you can see there is a picture of a farmer adding fertilizer to the crop field. So crop field में farmer क्या कर रहा है? Fertilizer को add कर रहा है. Other modes of nutrition in plants. जो plants में जो दूसरे modes हैं, let's learn about them. Plants that do not make their own food by photosynthesis depend on other plants for nutrition. So कुछ ऐसे plants होते हैं जो खुद का फूड नहीं बनाते, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. These plants are heterotrophs और ऐसे प्लांट्स को heterotrophs कहा जाता है. They may be or may not be green colored. ये जो प्लांट्स है ये ग्रीन कलर के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. Now heterotrophic nutrition in plants. Let's learn about it. Most of the plants are autotrophic in nature, but there are some plants which are dependent on the other plants or animals for their survival. तो कुछ ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे अपने सर्वाइवल के लिए. लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं. The first is the parasitic plant. A parasitic plant is the one which lives on another plant and draws its nutrition from it completely or partially. So ये जो parasitic plants होते हैं वो दूसरे plants पे रहते हैं, उस पे rely करते हैं और उसके अंदर से nutrition को ले लेते हैं, चाहे या तो completely पूरी तरह से या फिर partially means थोड़ा बहुत. This type of nutrition is called parasitism. So, the plant on which parasitic plants grow is called the host plant. So, वो plant जिसके ऊपर ऐसे plants grow करते हैं जो दूसरे जो heterotrophic plants grow करते हैं उन plants को हम host plant कहते हैं. The parasitic plant survives on the nutrition of the host plant and sometimes the host plant even dies from lack of nutrition. So, ये जो पैरासिटिक प्लांट है वो होस्ट प्लांट के ऊपर होते हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिशंस को सक करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा होस्ट प्लांट है वही मर जाता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. The example is given here. Cuscuta is a parasitic plant that grows on other plants. So, Cuscuta एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करता है. It is yellow, tubular, wire-like, covering the complete host plant like a mesh. ये येलो कलर के होते हैं, ट्यूब या वायर जैसे दिखते हैं और ये पूरे प्लांट को कवर कर लेते हैं एज अ मेश की तरह. Cuscuta have special structure in them called haustoria. इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं haustoria. Haustoria means sucking roots. Penetrates through the host body. होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाता है, ये उसके अंदर घुस जाता है. They suck food and water from the host. और ये होस्ट में से जो भी फूड होता है या जो वाटर कंटेंट होता है उन सबको सक अप कर लेता है और अपनी लाइफ बढ़ा लेता है. Here you can see the picture of Cuscuta, a total parasitic plant. आप देख सकते हो कि प्लांट के ऊपर कैसे ये फैले हुए हैं. They are wire shaped. और आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो जब भी आप कभी ऐसी जगह से जाओ एंड यू कैन ऑब्जर्व ऐसे प्लांट्स आपको जरूर दिखाई देंगे. अभी देखो पूरा एक प्लांट के ऊपर ये झुक चुका है और ये उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐसे धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं. सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट. कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं and these are called insectivorous plants. Now let's learn what are insectivorous plants. Some plants feed on insect by trapping and digesting them. So कुछ plants हैं जो insect को खाते हैं, उन्हें digest कर जाते हैं. These are called insectivorous plants. These plants have green leaves and they can synthesize their foods.
सो ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो लीव्स है वो ग्रीन होती हैं और ये अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट दे ग्रो इन वाटर लॉग्ड एरियाज, लेकिन ये पानी से भरे हुए जगहों में रहते हैं। एंड स्वैम्पी सॉइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो ऐसी जो जगह है यहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन दीज प्लांट्स कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। सो अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट जो है दूसरे इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। The leaves of a pitcher plant and are modified in the shape of pitcher with the help of the leaf forming a lid. So ये जो pitcher plant की जो leaves हैं वो क्या करते हैं, वो picture के shape में होते हैं like this and with the top of a leaf formed a lid, और उसके ऊपर एक leaf लगा रहता है जो lid जैसा काम करता है। The Venus flytrap, bladderwort, sundew, etc. are some other examples of the insectivorous plants. So children, यहाँ पे कुछ और insectivorous plants के example दिए गए हैं. These plants develop some special modification to trap insect. So इनकी body कुछ अलग तरीके से बनी होती है ताकि वो insect को आसानी से पकड़ सके. So ये you can see this is a picture of a picture plant. Picture plant में insect आ गया, ये leaves जो है बंद हो जाएगी और insect अंदर चला जाएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप की पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो इंसेक्ट इसके अंदर है और उसने अपना माउथ शट कर लिया एंड यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सो कुछ प्लांट्स हैं जिनका नाम है सैप्रोफिटिक, व्हाट आर दे, लेट्स लर्न। सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड अपीयर व्हाइट। सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो व्हाइट दिखते हैं। These plants grow on spoiled food, decaying vegetables, fruits, pickles, bread, leather shoes, purses, clothes, wooden logs, etc. So कुछ plants हैं जिसके अंदर chlorophyll नहीं होता है, वो सफेद दिखते हैं जैसे कि आप कह सकते हो, और ये कैसी जगहों पे ग्रो करते हैं, जैसे सड़ा हुआ वेजिटेबल, खराब हुआ फूड। आपने देखा होगा कि कई बार फूड खराब हो जाता है, उसमें वाइट वाइट कुछ जम जाता है, तो ये ऐसे ही प्लांट्स हैं जिन्हें हम सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। ब्रेड बहुत दिन तक रख दो तो वो ग्रीनिश और वाइटिश हो जाती है, फ्रूट्स को रख दो तो उसके ऊपर वाइट लेयर जम जाती है, लेदर शूज को आप रख दो तो उस पर भी व्हाइट लेयर जम जाती है, पर्सेस, क्लोथ्स, वुडन लॉग्स, इन सब में व्हाइट लेयर जम जाती है, मींस ये सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं। दीज आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉल्ड फंगी, फंगी भी कहा जाता है। दे आर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। सम आर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल मशरूम, सम बॉल लाइक, एग्जाम्पल पफ बॉल। सो कुछ अम्ब्रेला शेप में होते हैं जो मशरूम्स जैसे कह सकते हो आप, और कुछ बॉल जैसे होते हैं जैसे पफ बॉल। एंड सम पेपर पिन लाइक एग्जाम्पल राइजोपस, सो कुछ पेपर पिन की तरह दिखाई देते हैं। These plants secrete digestive juices on the dead and decaying object on which they grow and absorb the nutrients. तो ये plants क्या करते हैं, या अपने जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उस मटेरियल पे लगा देते हैं और उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स को वो सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और ऐसे प्लांट्स को हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट some facts. Fungi affect, grow on human and animal bodies and cause infection. So fungi अगर human body या फिर animals पे grow करने लगे तो क्या create करती है, infection हो जाता है उन लोगों को। These are harmful. Keep your body dry. हमेशा हमें अपनी body को dry रखना चाहिए। Some fungi are useful and edible. कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं और एडिबल होते हैं, जैसे कि मशरूम, इससे हम ये तरीके का फंगी, बट हम इसे खा सकते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। वार्निंग, और मशरूम्स आर नॉट एडिबल, जो जितने भी मशरूम है सारे ही एडिबल नहीं हो सकते, कुछ होते हैं जो हम इजिली खा सकते हैं।
सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं या सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. फंगल स्पोर्स आर जनरली फाउंड इन एन एयर लाइक डस्ट. सो ऐसे में जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो ऐसे जो फंगीज होते हैं इसमें जो है these are generally found in air dust. ये एयर में ये फंगी हमें आसानी से मिल सकता है, डस्टी एरिया में मिल सकता है. They keep floating when they land on wet and warm materials. ये हवा में उड़ते रहते हैं और जब इन्हें कोई ऐसा वेट या फिर वार्म मटेरियल मिल जाती है उस पर सेटल डाउन हो जाते हैं. They germinate and grow. ये जर्मिनेट करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं. They usually grow in wet and warm seasons. ये ज्यादातर वेट और वार्म सीजन्स में ही ग्रो करते हैं. Now let's learn about the symbiotic relationship. Symbiotic relationship क्या है? This type of relationship is unique in which two organisms live together. So ये जो रिलेशनशिप है इसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, जैसे दो एनिमल्स या फिर दो प्लांट्स. दिस इज कॉल्ड symbiosis, meaning living together, and the relationship is called symbiotic relationship. और ऐसे रिलेशनशिप को symbiotic relationship कहते हैं. In this both partners are benefited. और इसमें क्या होता है, दोनों जो पार्टनर्स हैं दोनों को बेनिफिट मिलता है. The first one is the lichen is one such example. जो lichen है वो पहला एग्जाम्पल है. It has two partners. lichen के हमेशा दो पार्टनर्स होते हैं. One is a fungus that provides shelter, water and minerals, and the second one is the algae which has chlorophyll. So ये जो lichens होते हैं इसके दो पार्टनर्स होते हैं. एक जो है फंगस होता है जो वाटर, शेल्टर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो होता है वो एल्गी होता है जो क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है. तो फंगस एंड एल्गी दोनों ही इसके पार्टनर्स हैं. इट मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड शेयर्स विद द फंगस. सो फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड बनाता है और अपने पार्टनर को, फंगस को ये शेयर भी करता है. लिचन्स ग्रो एज grey-green patches on rocks, logs, etc. So rocks पे या फिर लकड़ी के logs पे जो है ये आपको देखने को मिलेंगे. ये lichens जब ये grow करते हैं ये grey-green कलर के होते हैं, कुछ patches, कुछ निशान होते हैं ये. The second one is the legume plant, means pulses and beans, and some trees. So pulses और beans और कुछ trees हैं. These are legume plants. The fungi lives on the roots. ऐसे plants के जो roots हैं उस पे fungi रहते हैं. The fungi provide water and nutrients absorbed from the soil to the plants or trees. So fungi क्या करते हैं, water या फिर nutrients को provide करते हैं, absorb करते हैं soil में से और plants को पहुंचाते हैं. They get shelter and nutrients from the plants or trees. और ये जो plants हैं ये ही इन्हें nutrients देते हैं. In legumes, root nodules have bacteria that provide nitrates for making protein by the plants. So वैसे जो plants हैं इनके जो root में जो root nodules हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया होता है जो इन्हें नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये आराम से प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं. The plants in return give shelter and nutrition. और plants बदले में इन्हें shelter और nutritions देते हैं. In this association both partners are benefited. और इसी तरीके से दोनों जो पार्टनर है दोनों को ही बेनिफिट मिलता है. In parasitic association one partner is benefited and the host is harmed. जब parasitic association की बात करते हैं तो एक पार्टनर को बेनिफिट मिलता है बट दूसरे को हार्म मिलता है, बट इस सिम्बायोसिस में दोनों को ही प्रॉफिट मिलता है, दोनों ही शेयर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज replenishment of nutrients in soil. Do you like potato chips, wafers? क्या आपको चिप्स और वेफर्स पसंद है? Yes, you do when you finish a packet of chips eating them. From where you get it again?
सो जब भी आपको ऐसे पैकेट्स मिलते हैं, आप इसे फटाफट फिनिश करते हो और आप सोचते हो कि कहाँ से ये पैकेट हमें मिल सकता है। यू गो टू द किचन रैक कबर्ड एंड टेक इट। आप किचन में जाते हो, रैक को देखते हो और वहां से आप ले लेते हो। योर मदर कीप्स अ स्टॉक आफ्टर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट। आपकी मदर जो है इसका एक स्टॉक मेंटेन करके रखती है मार्केट से खरीद के। Soil is rich in nutrients. All plants absorb nutrients to nourish themselves. So soil में बहुत सारे nutrients हैं और जितने भी plants हैं वो इस nutrition को use करते हैं for their nourishment. The important nutrients absorbed by plant from soil are nitrogen. जो important nutrients होते हैं जो plants absorb करते हैं soil में से, उसमें से एक है नाइट्रोजन, जिसे हम NB कहते हैं। पोटेशियम मिलता है जिसे K कहते हैं एंड फॉस्फोरस P. Some crops use some nutrients in large amount and other in less. तो कई सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो इन न्यूट्रिशंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं लार्ज अमाउंट में, और कई ऐसे हैं जो इसे कम अमाउंट में यूज करते हैं। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ wheat crop. So wheat crop की ग्रोथ के बाद नाइट्रोजन gets reduced in the soil. नाइट्रोजन जो है सॉइल में कम हो जाता है। Very little is left for the next crop plant. So अगला क्रॉप अगर हमें ग्रो करना है तो उसके लिए कम नाइट्रोजन होता है सॉइल में। If plants are grown in such a soil, they will be unhealthy. और अगर ऐसे कम नाइट्रोजन वाले सॉइल में अगर हमने प्लांट्स को ग्रो किया तो क्या होगा, वो अनहेल्दी होंगे। To gain enough nutrients, farmer replenish it by. So farmer क्या करते हैं, farmers ऐसे फील्ड में नाइट्रोजन को डाल देते हैं। क्या करते हैं वो, they add manures and fertilizers, example यूरिया। वो यूरिया डालते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, जिससे नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ जाता है। प्लांटिंग legumes have nitrogen fixing bacteria in their root nodules naturally. So यहाँ पे इन legumes को प्लांट कर देते हैं जिसके अंदर, जिसके जो रूट्स हैं उसके अंदर कुछ नेचुरल नाइट्रोजन होता है। By these two ways nitrogen is restored and plant utilizes. और इन दोनों तरीकों से जो प्लांट्स है उसके अंदर वापस से नाइट्रोजन आ जाता है। Plant provide shelter to rhizobium and get nutrients in return. तो प्लांट्स क्या करते हैं, राइजोबियम को शेल्टर देते हैं और जिसकी वजह से जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वापस आ जाते हैं। दिस रिलेशनशिप इज वेरी यूजफुल टू प्लांट एंड द फार्मर। और ये जो रिलेशनशिप है इसकी वजह से प्लांट्स को भी बेनिफिट मिलता है और फार्मर्स को भी। ही नीड नॉट एड एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर टू सॉइल, दिस कीप्स द सॉइल फिट एंड फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन। सो फार्मर को इसकी वजह से एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है और सॉइल जो है फिट रहता है फॉर कल्टीवेशन, फॉर ग्रोइंग मोर क्रॉप्स। ये यू कैन सी नाइट्रोजन इन एयर कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। सो जो भी नाइट्रोजन है एयर में वो प्लांट्स जो है यूज नहीं कर पाते। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो lies in root of the nodules of the pulses, beans, etc. to make atmospheric nitrogen and convert it into soluble nitrates in soil. अब राइजोबियम भी अपना खुद का फूड नहीं बना सकता तो ये प्लांट्स की हेल्प करता है। अब जो है लेग्यूम प्लांट्स अब्सॉर्ब इट, लेग्यूम प्लांट्स क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। टू मेक प्रोटीन, एग्जाम्पल लेग्यूम्स लाइक मूंग, पीस, ग्राम। सो ऐसे प्लांट्स को लिए ग्रो करते हैं। So this is the complete process, dear children. Now let's quickly recall what we have learned here. Every organism needs nutrients to get energy. Nutrients may be autotrophic or heterotrophic. Plants prepare their food by photosynthesis. Photosynthesis requires sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Glucose and oxygen are produced in photosynthesis. Photosynthesis is not only responsible for meeting the food demand of the living world, but also for maintaining oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. Plants also need nitrogen. They give it
through manures, fertilizers and nitrogens, fixing bacteria present in the soil. Plants are mostly autotrophic, but they may be heterotrophic like parasites, saprophytics and insectivorous plants. Now children, let's answer the questions. Which type of plant depend on insect for nitrogen requirement? So here the answer is the insectivorous plants. Now name the pigment found in the leaves of plants. So the pigment is chloroplast. Name the plant that has root nodules. So this you have to write on your own. Define the role of chlorophyll in plants. So chlorophyll helps the plants to make food. The chlorophyll present in the plant helps with water, sunlight to make carbohydrates, or you can say sugar, and this chlorophyll lives in the chloroplast. So chloroplast में ये मौजूद होता है और ये help करता है that it takes the carbon dioxide from the atmosphere, and with the help of water and the different things, it helps release the oxygen and this carbohydrates. Now name a fertilizer, and its name is urea. What is the function of stomata? Stomata, through stomata, plants can breathe in carbon dioxide and release oxygen. Mention the materials essential for photosynthesis. So the materials essential for photosynthesis are water, then nutrients, sunlight. So these are a few of the essential nutrients. Also the chlorophyll. Why do leguminous plants have root nodules? These root nodules provide nitrogen to the plants. That's why these leguminous plants have root nodules. So children, I have written this answer of some of the questions. You can elaborate these answers on your own, and I hope with this you have understood the chapter. And if you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay related.